एज़ेकियल 1 चैप्टर 2 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे और फिर हम BSI बाइबल हिंदी में से भी पढ़ेंगे। एज़ेकियल 1 चैप्टर 2 चैप्टर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी सहायता हमारे अंदर है, आपके वचन हमारे अंदर मजबूती पकड़ रहे हैं, हमें दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे अंदर का बल और शक्ति तैयार हो रही है और हम परमेश्वर की योजना में ढलते हुए आ रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपके बिना ये वचन हम व्यर्थ ही पढ़ेंगे। आप हो तो ये वचन में जान आएगी, इसके अंदर आपका जीवन फूंका जाएगा और ये वचन जीवित होकर हमारे अंदर काम करने लगेंगे। हमें सहायता कीजिए इन वचनों से एक मन होकर समझ बुद्धि ज्ञान में बढ़ने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। एज़ेकियल 1 चैप्टर पहले पढ़ेंगे, फिर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। नाउ इट केम टू पास इन द 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God in the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim's captivity. The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar. And the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings. And their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides, and they 4 had their faces and their wings. Their wings were joined one to another. They turned not when they went every one straight forward. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion, and on the right side, and they 4 had the face of an ox. On the left side, they 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces, and their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And they went every one straight forward, whither the Spirit was to go. They went, and they turned not when they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, and like the appearance of lamps. It went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. And the living creatures ran
and returned as the appearance of a flash of lightning. Now, as I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures with his four faces. The appearance of the wheels and their work was like unto the color of a beryl, and the four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. 17 verse से आगे. When they went upon their four sides, and they turned not when they went. As for their rings, they were so high that they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them four. And when the living creatures went, the wheels went by them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Whithersoever the Spirit was to go, they went thither was their spirit to go. And the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, this went, and when those stood, this stood, and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal stretched forth over their heads above. And under the firmament were their wings straight, the one toward the other. Every one had two, which covered on this side, and every one had two, which covered on that side, their bodies. And when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech, as the noise of an host. When they stood, they let down their wings, and there was a voice from the firmament that was over their heads when they stood and had let down their wings. And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire, round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightest round about, as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. Chapter 2, first verse. And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. And the Spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They
and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God. And they whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words. Though briars and thorns be with thee, and thou doest dwell among scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. But thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like that rebellious house. Open thy mouth and eat that I gave thee. And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. And he spread it before me, and it was written within and without, and there was written therein lamentations and mourning and woe. हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। परमेश्वर के विषय यहेजकेल का प्रथम दर्शन। पहला अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश, और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे, और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्यों का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाई ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढंपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे
उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप बनावट फिरोजे की सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था, जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे, जिनसे उनके शरीर ढंपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। परमेश्वर की बुलाहट 2 अध्याय पहले वचन से। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं।
इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 11 चैप्टर 24 से 34 वर्स तक, और फर्स्ट क्रॉनिकल्स 11 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 से 34 वचन तक, पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय। हमने ये 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अकेले में बैठकर एक मन होकर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन वचनों को सीखना है। और जैसे ही हम उन वचनों को सीखते जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से कुछ रहस्य भेद बताकर हमारे अज्ञानता को नाश करेगा, हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान को भरेगा, और हम परमेश्वर के लिए जैसा दुरुस्त होकर निखर कर आना चाहिए उस रचना में हमको लेकर आएगा। ऐसा होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। तो हमने निश्चित परमेश्वर के आत्मा का लाभ लेना है। अनुग्रह का, सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर है, उसका लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमको पढ़ने में सहायता किया तूने, और उसके अंदर के सारे वचन भेद ग्रहण करने का मन दिया। उसके साथ साथ पिता हमें दुरुस्ती लाया, ईश्वरीय रचना को लाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को भी पिता परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम पूरा कर सके, और पिता हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हमें नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।